ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਸਮ ਨਾਨਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਸ਼ੀਦ ਗੰਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਜਾਂ ਫਲਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਵੀਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੀਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਫਤਵਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਫੈਂਕ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਫੈਂਕ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਣ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੋਂ ਬੰਦ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਆਪੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਡਰੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਆਖਣ ਆਈਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨ ਨੇ ਜੀ, मैनेज गेस्ट भी और पिन कमेंट्स भी मैनेज गेस्ट नहीं है तक आया जी, मैं फिर दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन कर देता है। नहीं हो भी नहीं जाया मेरे को, या फिर हो सकता मेरी आईडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੋ ਐਨੀਵੇ ਸਕਦਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਹਣੇ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਗਏ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 16 ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਓਪਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਤਮ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਾਕਾ ਜੀ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। शायद तू मैनू पता है, मैनू ला देना थले, ला दे भाई। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰੀਏਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਢਾਹ ਛੜਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੱਚੀ ਮੁਝੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾ ਛੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਉਮਰਾ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨੂਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ ਕਿ ਨੱਚ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ, ਕਿ ਨੱਚ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ ਕਿ ਨੱਚ ਵੱਲ ਤੱਕ ਮਨੂਰਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਕੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਆਕਵੇ ਤੇ ਨੂਰਿਆ ਤੂੰ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ। क्या बात है, क्या बात है। वैसे ना यकीन करें इतने ये हरामी है मरज़ई का दैनी लजनात, ये बैठकर सुनते हैं ऐसे गाने, बहुत पसंद है इनके, हैं तो ये पक्के हरामी ना, और बड़ा कण लगा लगा कर सुनते हैं, और बच्चों को कहते हैं यार दूर हट जाओ ना। पर्दे की बातें है ना, पर्दे की बातें। क्या बात है। पता है क्या, इन्होंने ये कोई अंग्रेजी में भी शुरू की हुई है अपनी
बराडे तो हम भी कभी ना कोई क्वेश्चन आंसर का होना चाहिए वीकेंड पर ना, अंग्रेजी में भी, तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में भी इनको करें। डॉक्टर साहब करते हैं 1 घंटे की ब्रॉड, अभी डॉक्टर साहब को हाँ कुछ लेकिन नहीं ये है करते। ना कि जी अब वो डॉक्टर साहब के पास ये आते ही नहीं है ना, वो उनके जो है ना वो बस वो उनके बहुत बड़े बाबा जी है ना, वो नहीं आते। लेकिन ये है ना कि अब मर्जियों की जो पुरानी नस्ल है ना वो खत्म हो गई है ना, जो पुराने थे 70 साल 80 साल 90 साल, नई जनरेशन जो है ना वो ना तो इनको मानते हैं और इन पर लख दिल लानत डालते हैं, पर ये है ना कि उनको ज्यादातर वो अंग्रेजी बोलते हैं या फ्रेंच बोलते होंगे या जर्मन, तो उनको उनके लिए ना कुछ होना चाहिए कि उनको हम बताएं भाई इस्लाम क्या है और मर्जियत क्या है। जी जी दसो ओ मर्जियो क्यानी साहब ਨੂੰ ਦੱਸੋ क्यानी साहब जो पूछते रहे। पता है क्या ये है ना कि अपना अगर कोई नीचे सवाल लिखना चाहता है ना अपना आमिर भाई, तो वो मुझे पढ़कर सुनाए, मैं उसको जवाब दूं ना। अंग्रेजी में कहते हैं चलो दे देता हूँ, फारसी में है जी, स्पेनिश तो मैं की तो ही आती है, ज्यादा आती ही नहीं है। ਹੁਣ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫੋਨ ਵਾਲੂ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰਦੇ ਰੁਪਏ। वो अपने शायद भाई की तरह मेरी भी ऐनक टूट गई है मेरे प्यारे, ऐनक गुम हो गई तो बस वो जनाब बस के कहीं बस वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो नजर क्या आना चाहिए, बस ये है कि आवाज जो है ना होनी चाहिए, बाकी क्या नजर करना है नजर को। मिर्ज़ा कादियानी को भी नजर नहीं आता था, वो क्या क्या करके चला गया है, क्या ख्याल है, एक आंख से अंदाजा लगाए बड़ा हरामी मिर्ज़ा कादियानी, ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ एक ਨੇ आंख उसकी। ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਚੜਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀਰ ਚੀਕਾਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੈਟਰਿਨ ਚੜਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਚੀਕਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਟੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਦੁਰ ਦੁਰ ਮਿਰਜ਼ਿਆ। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ये है कि थोड़ा थोड़ा कोई मिसरा दिया करे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਤਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ 5ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, मिर्ज़ा कादियानी तो नहीं था वो मिर्ज़ा कादियानी तो नहीं था वो शायद भाई लगाते होते हैं ना, वो थर्स्टी करो लिखा करें उसको वे के पीछे बल्ले भाई बल्ले, क्या वो यकीन करे ना, वो कहो वो जो थर्स्टी करो था ना वो बिल्कुल मिर्जे की तरह ही था, है जी, कि उसने लोटे के अंदर जनाबे अली पत्थर डाले। ਅੱਛਾ ਕਿਆਨੀ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਟੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। मुझे सोचना पड़ेगा किसके साथ जंग थी जनाबे अली। ये पता है क्या सवाल जवाब किया करें। और शायद साहब का लोटे के साथ ही हूं काम। ते जरा ना खातर मनहूज रखे सर अल्फाज। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਫੋਨ पढ़ो ना तो और लाओ, क्या करो। अपना अपना ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। अब ये बड़े बड़े जो कहते हैं सो कॉल्ड पढ़े लिखे मेरे समेत जवाब दें ना जी, किसके साथ मिर्ज़ा कादियानी की जंग रही सारी याती, और उसी याती में ही वो टुर गया। ਅੱਛਾ पता है क्या जब ਗਿਆਨੀ मिर्ज़ा ਭਾਈ जी ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਲੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। अच्छा वो लोटा वैसे किस किस्म का था जनाबे अली? लोटा लोहे का था, चांदी का, पित्तल का, किसका वैसे वो लोटा था या मिट्टी का था? ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ जी ਟੋਟਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਐਲਆਰ ਬਣੀ ਸੀ। ओए होए 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 होए।
वैसे यकीन करें जी कि उस लोडे गरीब का क्या हाल होगा। ज्ञानी साहब, एक तो मिर्जे ने ज्ञानी साहब मेरे प्यारे हो ज्ञानी साहब मेरे प्यारे हो, ये बराड़ बड़ी सुलझी हुई बराड़ है आबद भाई की, तो आप बराड़ को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? ਉਹ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ अब एक सेकंड ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁਲਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਚਲੋ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਟੱਟੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਲੱਕ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮਰਦਾ ਹੀ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ? नहीं सर, मैं ਹੋਣ ਕੀ वो ਲੱਗੇ? ऊपर ना मैं क्यों वो परेशान ऊपर हूँ? बैरिस्टर साहब भी तशरीफ फरमाए, हमारे आज मेहमान खुसूसी है। बैरिस्टर साहब भी तशरीफ फरमाए। अच्छा बरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर अमर साहब एक सेकंड, अमर साहब एक सेकंड, मेरा भी एक सवाल है। ਆਬਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸ ਬਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੁਰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ये अपनी बनो रजाई वाली थी। ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਨਸਰਸ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? बरकत बीबी। ये अवध भाई इसका भी निकाले हवाला। जी इसका तो मुझे भी नहीं पता है अभी। ये बरकत बीबी वही थी जिसको वो केले भी देता था और चलगोजे भी, वो मुफ्ती साहब फरमाते होते हैं ना, चलगोजे और पता नहीं क्या क्या फल फ्रूट, वही है ये बरकत बीबी। जी वही बरकत बीबी है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੱਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੋਟਾ ਤੂੰ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨੁਕਰਾਨੀ ਸਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਵਾੜਾ, ਤੇ ਮਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਸੜਿਆ। वो पानी टट्टा भी उधर करते थे अंदर ही। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੈਨਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਸੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਾ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੇ अपना और चारपाई वगैरह भी उधर होती थी ऊपर, अपना वो जो बैतल दुआ है उसमें। ये कोई मर्ज़ई का दिया नहीं नीचे, जरा बताइएगा जी। उधर चारपाई आज भी है कि अभी आप लोगों ने उठा ली है, कुर्सी रख ली है वो सुराख वाली, और जिसके दरमियान में सुराख था, जिसके नीचे आपने था यानी कोई मर्ज़ई बताइएगा, कोई लजना बताइएगा जी। यानी भाई ये जो वो जो पोर्टेबल टॉयलेट था वो जो पहली सीरतुल मेहदी लिखी हुई है ना 1935 से पहले का जो एडिशन है, और उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि बल्कि मेरे पास स्कैन मौजूद हैं कि कोई इंतज़ाम नहीं था, ये सब बाद में उसमें ये लाइनें डाली गई। बल्कि उस सीरतुल मेहदी में तो ये लिखा हुआ है कि मैंने, वो बंदा बयान कर रहा है, मैंने खुद देखा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मुंह से भी गू निकल रहा था। ठीक है जी, जो पहले एडिशन है उनमें इन्होंने असल सूरत हाल लिखी है और वहाँ पे कोई टायलेट टूलेट का जिक्र नहीं है। चारपाई के पास बैठकर फारग हुए, ये लिखा हुआ है। ये जो चारपाई, पता है क्या, अब अपने आबद भाई मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। आप जो कह रहे हैं
देखें ये मैं हम जो आवाम सुन रहे हैं इन पर छोड़ते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अब मिर्जा कादियानी कज़ाब दजाल ऑफ कादियान जा रहा है टांगे में बैठकर, साथ उसके जा रहा है जनाब वो काजी यार जानते होंगे आप। तो चलते चलते ना मिर्जे को आ गया वक्त आया, वो 100 में से एक टाइम आ गया, तो मिर्जे ने वो टांगे को खड़ा किया सड़क के ऊपर ही, नीचे बैठ कर उसने गंद डाल दिया सड़क के ऊपर। ये जा रहा है ना जिस तरह वो स्ट्रीट होती है, तो अब ना सादक कादियानी आ गया, वो बैठे हुए उधर, अभी क्या करे, अब इसको उठा भी नहीं सकते, इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो फिर पता नहीं इन्होंने क्या किया है। और बाकी जहां तक है ना मिर्जे के बिल्कुल ऐसे ही है। मिर्जे का जब मरा था, मिर्जे के हर सुराख से गंदगी, जिसको हम ये पेशाब कहते हैं, जलाब कहते हैं, ये निकल रहा था, उसके मुंह से भी निकल रहा था। और हैरानगी की बात यह है कि वो बंद नहीं हो रहा था। क्यों मर्जियों का दिया नहीं, मैंने गलत कह दिया, गलत कह दिया लजनाओ, क्या गलत ये ऐसे है कि नहीं है? जब आप लोगों ने उसको तरपाल में लपेट लिया गंद समेत, तो फिर भी वो लीक कर रहा था, और उसका लीक करते करते वो नीचे जनाब गिर रहा था। और मर्ज़ई कादियानी जो थे ना बड़े बड़े उसके पुजारी अपने मिर्जे कादियानी भगवान के, वो उस टट्टी पेशाब को पी रहे थे, उस गंदगी को जिसमें खून भी था, मूत्र, कबाब, शराब, हर चीज, उसको ये पी रहे थे। ये भी उनकी किताबों में लिखा है, जो उसके बड़े बड़े राइटर हैं ना, उन्होंने ये लिखा है कि ऐसे हुआ है। और वहां पर फौज थी बरतानिया की, फरंगी फौज थी, और उनके जो शूज थे ना वो गंद से भर गए थे। तो उनके साथ जो था ना उनका जो उनका कप्तान वगैरह, जो भी उनका कमांडर था, उसने कहा कि आपने हमको किस गंद में डाल दिया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये ले साबुन, ना इसको धो ले, और साबुन से भी वो बू नहीं जा रही थी। ये मिर्जे कादियानी के सवालों के जवाब है जी। आप फरमाएं जी। अब आप ही फरमाए। वो पता है क्या, सारे बंदे यारा भाग गए हैं बेचारे, शायद उनको ज्यादा ही भू आ गई है। पता करना, गिर तो नहीं गए हैं कहीं, अल्लाह खैर से रखे सबको। क्या करे, कोई फिल्टर वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए आज आप जब मिर्जे कादियानी पर बात होती आज है जी। आपको आज सर आपको भरपूर मौका दिया, आज आप खुल के आ जाए सामने, हर चीज सामने रहे हैं। नहीं अमर भाई, मैं वो सोच रहा हूँ कि ये जो इसने मिर्जियों कादियानियों ने, मिर्जे बशीर जानी ने और सादक कादियानी ने ये जो इधर किया है, ये जो डाका मारा है ये काले लोगों के हालात पर, और इनमें जनाबे अली एक बंदे को जो कि पक्का काफर था, पक्का शराबी था मिर्जे कादियानी की तरह, उसको इन्होंने अलीजा मोहम्मद बनाकर ईसा बना डाला है जी। ये लाशी जो मिर्जे कादियानी कल्ट है। और उसके बाद ये हुआ कि एक दूसरा जो था फरंगी, उसका नाम था डेविड फोर्ड, उसको फर्द मोहम्मद बना डाला जनाब, उसको ना कालू का जो है ना वो गार्ड बना डाला। तो बात यहाँ पर ये है कि ये कैसे हुआ। और फिर जनाब ब्लैक पैंथर उनकी एक रेजिमेंट बनाई जिसका काम ही यही था कि यूरोप के लोगों को की जनाब पटाई करनी, जिधर भी मिले ना पटाई करनी। और मर्जियों कादियानी ने कहा कि जहां भी आप यूरोप का बंदा देखे ना, ये समझे कि ये ईवल है, कि ये ईवल है जी। और उस पर बात हम कर रहे हैं, इसीलिए मैं वो कहता था कि वो जो उनकी अखबार है ना द फाइनल कॉल, तो वो बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि मैं उसकी स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं दोबारा बात करूंगा। तो मर्जियों से बस यही पूछना है लजनाओं से कि आपने कैसे कत्ल किया था मेल्कम एक्स को। वैसे तो आप बड़े बड़े लोगों को मार देते हैं, इतने बड़े हरामी हैं, तो मेल्कम एक्स को कैसे मारा था? तो अगर कोई उसकी औलाद, कोई उसके रिश्तेदार चाहे आपसे इंसाफ लेना, तो क्या किया जाए?
कौन सा आपका मुजरम है जिसको हम अदालत में पेश करें उनके सामने कि ये लें जी, इस बंदे ने जो है ना ये कार्रवाई डाली थी, या ये उनकी औलाद में से है, या ये उनका जो है ना ये उनका बड़ा सरगना है, जिस तरह मिर्जा मसरूर कादियानी हो गया, या वो जो फौजी या इधर टेक्सास में बैठा हुआ वो है, या कोई और मर्ज़ई कादियानी है, ताकि ना हम नहीं चाहते यार किसी के साथ ना इंसाफी हो। अगर कालू के बंदू को आपने मारा है ना, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों मर्जियो, ऐसा है कि नहीं है? क्या ख्याल है तुम्हारा? पर तुम तो कहते हो कि जी हाँ हमने मेलकम एक्स को कत्ल किया था, जाओ जो कुछ करना है कर लो। तो देखें भाई, हम भी कर रहे हैं जो कुछ हमसे हो सकता है। तो वक्त लगता है ना चीजों के होने में, उसी वक्त तो चीज नहीं ना हो जाती, बड़े बड़े साल लग जाते हैं। तो हम भी लगे हुए हैं, देखें और कितने साल लगते हैं जब मर्जियों कादियानी को भी पता चले कि हमारा जो बड़ा था मिर्जा कादियानी दजाल, और उसके बाद जो हरामी था अपने नूरे की औलाद बशीरा जानी और अपना सादक कादियानी, कि उन्होंने कितनी कितनी हरामज़दगियां की हैं और उन्होंने कितने कितने अच्छे लोगों को कत्ल किया है। मेलकम एक्स बहुत अच्छा बंदा था। जब वो मुसलमान हो गया था तो उसके बाद उसने यहाँ के लोगों को बताना था कि इस्लाम क्या है। हाँ, लेकिन मर्जियों कादियानी ने वो किया कि उसको ही खत्म कर डाला, और यहाँ पर ये हाल है कि किसी को पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, किसी को खबर ही नहीं है। उसकी वजह ये कि ये इन्होंने हर चीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अब देखें ना, alislam.org, ये मर्जियों कादियानियों की साइट है। कोई भी आप इस्लामी चीज, मुस्लिम टाइम आप देखें, लिखें जी आप मुस्लिम टाइम गूगल पर चेक, उसका जो बड़ा है ना, वो एक ज़िया शाह नामी का एक डॉक्टर है, हरामजादा, ठीक हो गया, वो मर्ज़ई कादियानी है। अच्छा, मुस्लिम सनराइज इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मर्जियों कादियानी काफरू ने बनाई है, वो जनाब मर्जियों कादियानी काफरू की है। यहाँ के बंदू को पता ही नहीं चलता कि इस्लाम क्या है। यकीन करें ना, अगर आप किसी यूरोप के बंदे से पूछे ना कि इस्लाम क्या है, तो वो आपको किसी काले का नाम बताएगा, वो जो पक्का काफर है और उसने बड़े बड़े जुर्म किए होंगे, तो कहेगा यार ये वो लोग हैं। तो यकीन करें कि बड़े भयानक तरीके से ना इसने मिर्जे कादियानी ने और उसके बाद मिर्जे बशीरे ने दीन इस्लाम पर हमला किया है, बड़े भयानक तरीके से। और ये कभी हमने ये चीजें अभी तक हमने ये चीजें खोली ही नहीं है, जिनका खोलना बड़ा ही जरूरी है। जब तक ये खोलेंगे नहीं, हमारे अवाम को पता ही नहीं चल। हमारे अवाम बस यही कहते हैं कि ये चंद एक इधर चनाब नगर में ही है। नहीं 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 नहीं, ये बीमारी बड़े दूर तक गई हुई है। इन्होंने वो काम किया है कि जिसकी कोई, यानी कि हम कोई उसका कोई मिसाल नहीं दे सकते। अब एक बहुत बड़ा एक कातिल था बंदा, ये चेक कर लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा इसी बातों पर लगाया हुआ है। और अब वो है ना कि और मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है, दीन इस्लाम के लिए काम करना बस, और इस्लाम का पैगाम और दुनिया तक पहुंचा देना, स्पेस में भी पहुंचा देना, जनाब अली सितारों तक भी पहुंचा देना। ये हमारा काम है और हम करेंगे। हम नहीं तो हमारी नस्लें करेंगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा ये जो वजीफा है ना, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जो है ये हर किसी के जो है ना होना चाहिए, हर किसी के जनाबे अली होना चाहिए कि जहां भी ये बात हो रही हो इस्लाम की, वहां पर ये बंदे जो है ना, वहां पर ये बंदे होने चाहिए जिनको पता हो कि मतलब क्या है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।
اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پھر یہ ہمارے بچے سوال کریں گے کہ ہمارے بابا جی ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، تاجدار ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ وہ ہمارے قبلہ مظفر فارسی دامت برکاتہ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اپنا جی انہوں نے فرمایا تھا کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تو وہ بات کر رہے تھے ہم مرزیوں قادیانیوں کی کہ کس طرح انہوں نے ہمارے دین کو بدنام کیا، ساری دنیا میں بدنام کیا جی۔ تو وہ میں بات کر رہا تھا اس بندے کی جو ایک بہت بڑا قاتل تھا نا، نام تھا اس کا ایلن محمد۔ عجیب سے آپ کو ادھر نام ملے گے نا، یہ جو کافر لوگ ہیں مرزئی جو ہے، کسی کا نام ہے میجر محمد، کوئی ہے فلاور محمد، کوئی جناب ہے ٹری محمد، کوئی ہے جناب جانسن محمد، عجیب عجیب نام ہیں ان کے، اور سارے کے سارے یہ پیداوار ہے یہ بشیر زانی کی اور صادق قادیانی کی ہیں جی۔ تو وہ اس بندے کی بات ہو رہی تھی، اپنے کیا نام ہے اس کا، ایلن محمد کی۔ تو جی وہ جناب بڑے اس نے بندے مارے جی۔ جی کوئی سوال ہے؟ کریں نہیں، ابھی ادھر ہی ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، پیسے مل گئے ہیں لیکن بیٹھا ہوا ہوں، ادھر ہی ہوں ابھی۔ یار ایک تو ابھی یہاں پہ 11:30 بج گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں؟ گھر جاؤں گا، ابھی وہ چائے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے تو چائے پی کے ٹھیک ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا، پھر ایسے کریں نا،